Havana Seminar Resolution Restoring the Honor and Equity of Military Ranks. Today, 30th December 14, 2024, we have conducted here at the Press Club Taniga. Veterans, spouses, dependents, and supporters from across the country gathered both in person and virtually under the banner of Hamena to discuss and propose critical reforms for addressing the challenges faced by the armed forces. The seminar focused on ensuring equity, dignity, and justice for all personnel, particularly the Emergency Commission officers, Short Service Commission officers, Women's Special MP officers, and majors and lieutenant colonels, selection grade. During the seminar, participants highlighted the systemic issues surrounding military rank honors and one rank, one privilege. Resolutions were passed with a focus on following reforms. Resolution adopted correcting degradation of military ranks. Many officers who retired before December 16, 2004 have been unfairly downgraded in the OROP tables, reflecting a rank lower than the actual designation. This has caused distress among veterans, especially senior citizens. The resolution demands immediate rectification, restoring ranks to one level higher to honor their service and sacrifice. Secondly, universal OROP for all. OROP should be extended to all military rank personnel, including Emergency Commission officers, Short Service Commission officers, and women special entries because they have the President's Commission rank after they reach a pensionable age. Now, question is coming, which is the pensionable age? This ensures that every soldier, regardless of service duration, receives fair recognition and palliation secured. Implementation of a 3-tier service system. It's a very it is part of the discussion earlier. We have been discussing since long. Schemes like Short Service Commission officers, Agniveer, and people getting released after 20 years. Actually, we are already doing this particular system which is already prevalent, but we are not officially saying so. Now, this is there. We have read it. That what is actually on ground, we are suggesting a 3-tier system of the armed forces. 10 years, first year 10 years, 5 plus 5. 5 years plus 5 years service. Exit option with adequate financial including financial security, including OROP after pensionable age, and resettlement support. After resettlement support. Now, next year is 20 years of service, exit with full pension and enhanced benefits. Third year is 30 years of service, regular service, completion and maximum entitlements. Fourth, separate pay commission for the armed forces. A dedicated pay commission is essential to address the unique needs and sacrifices of military personnel, ensuring diversity in compensation and benefits without relying on civilian framework. If we can have a separate budget for railways and separate for general, why can't we have a separate budget for even defense? Enactment of an Ex-Servicemen Welfare Act. The resolution calls for a comprehensive welfare Act
codifying resettlement protocols, grievance mechanism, and structured benefits for veterans, spouses, and dependents. Sixthly, resettlement support for released personnel. All ECOs, all emergency commission officers, short service commission officers, and WCs must be provided comprehensive resettlement privileges, including priority government placements, skill building opportunities, and financial incentives for entrepreneurial ventures. Seventhly, separate protocols for ex-servicemen services. Dedicated service protocol should be introduced for veterans to streamline welfare benefits, resolve grievances efficiently, and foster long-term support for their families. The key highlights of this particular seminar: military rank degradation has really come in this seminar. Attendees restated significant discrepancies in the OROP tables, where the ranks of officers who retired before December 16, 2004 appear downgraded. For instance, major rank officers have been equated to captains and lieutenant colonels to major, creating undue hardship for these senior citizens, and are not, and they have got more than about 500 officers. This is my statistic. It can go wrong. Affected personnel, ECOs, SSCOs, and WCs without OROP. This is a serious matter. The seminar compiled a list of personnel, including those who serve with distinction but certainly lack OROP benefits due to policy gaps. The cost to the exchequer should not be more than rupees 300 crores per annum if it is considered after the pensionable age. Senior citizens and aid veterans, a special emphasis was placed on retired officers aged 60 and above, many of whom are grappling with financial security as declining health despite their exemplary services to the nation. Conclusion and call to action. The resolution adopted during this seminar reflect the collective voice of the veterans community. Hum Hai Na urges the government to act swiftly to implement these reforms, ensuring justice, dignity, and equity for all those who have served the nation. We have also posed 75 questions as we are celebrating our 75 years of Constitution. We have also raised 75 questions, which we will distribute separate. गजल विवेक, आज आपने सेमिनार रखा है, इसमें हम है कि ना की तरफ से आपने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ट्वीट भी किया है। ये विस्तार से बताइए, आपने क्या कंक्लूजन निकाला है आज के सब? देखिए, हमारी ये जो सेमिनार है, ये बड़ी 10 साल की लगातार हम लोग जो लगातार सब हमें समय के साथ सरकार को बता रहे हैं, पार्लियामेंट में बता रहे हैं, कोर्ट के अंदर अपने केस लेकर गए हैं और एग्जीक्यूटिव को भी बता रहे हैं। जो हमारी ये समस्या है 1/1 पेंशन की, वो ठीक प्रकार से लागू नहीं हुई है। खास करके इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और वुमेन शॉर्ट सर्विस वुमेन स्पेशल एंट्री ऑफिसर्स को बिल्कुल भी ओवरमोटी नहीं मिल रही है। और जब से ये एरियस कमेटी बैठी की, जिन्होंने रिफॉर्म्स किए आर्म फोर्सेस के अंदर, उन्होंने हमारी मिलिट्री रैंक पर अपग्रेड तो किया, लेकिन जो 16 दिसंबर 2004 से पहले रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक्स, मेजर रैंक, उनको उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। हमें वर्क पेंशन में दिखाई दे रहा है कि उनको वहां पर डाउनग्रेड कर दिया है और बहुत ज्यादा इससे नुकसान। तो साहब ये बताइए, आपने राजनीति के स्तर से मिलिट्री के गिरते रैंकों पर बड़ी चिंता की है और डिफेंस के लिए अलग बजट की मांग की है, इन दोनों के बारे में विस्तार सकते हैं? देखिए, ये जो मिलिट्री रैंक है, हम मानते हैं कि ये प्रेसिडेंट्स कमीशन रैंक है।
और ये मिलिट्री रैंक जब प्रेसिडेंट कमीशन रैंक है, तो हमारा जो कमांडर इन चीफ है वो हम मानते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट, राइट, एंड वॉट एवर डिसीशंस आर बीइंग मेकर, और जो भी आप हाल को हम मानते हैं, हम मानते हैं कि ये प्रेसिडेंट की तरफ से ही अप्रूव होता है और सैंक्शन होता है। अब प्रेसिडेंट हमारी एक जा इसके लिए हमारी पॉलिसी बनाता है, वो जो इस डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। और वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो किसकी गवर्नमेंट है? वो पूरे इट्स अ पीपल्स गवर्नमेंट। जब हम डेमोक्रेसी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो जो नेशन को, ये नेशन में जो सरकार बना दी है डेमोक्रेटिक की, पिछले 75 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस हो रही है, हम अपने नेता चुनते हैं, वो वहाँ पर सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने के बाद अपना कैबिनेट के युक्त हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो आर्म फोर्सेस का जो एक दायरा है, वो आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अलग खत पड़ जाता है। सर, आपने आज प्रधानमंत्री को मुख्य रूप से क्या ट्वीट किया है वो बताएं। हम सब उनको जो ट्वीट कर रहे हैं बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये जो वन तैयार की जो पॉलिसी है, ये ऑन ग्राउंड के अंदर जो है वो ठीक से नहीं लगी हुई है, और इसमें ऊपर से दिखता है कि वन रैंक वन पेंशन आ गई है, लेकिन जो अधिकार जो हमें पेंशन की होनी चाहिए थी, इक्वल पेंशन फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, जो पहले जो हम लोग काम करते रहे थे 2004 के पहले ही आज बोले कम, आज के युवाओं में प्रदर्शन कम होता जा रहा है, तो अभी भी स्कीम भी आई है, उससे उसके बारे में क्या है? ये वन रैंक वन पेंशन की तरह से वन रैंक वन पेंशन की वजह से यूथ नहीं मोटिवेट होता। यूथ मोटिवेट होता है एक्स सर्विसमैन को देखकर। इनका मोराल कितना है? अगर एक्स सर्विसमैन का मोराल इस समय जो ये एक्स सर्विसमैन का जिस प्रकार से मोराल होना चाहिए, खास करके जो यंग ऑफिसर्स है, यंग रैंक्स है, लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन्स, वेजर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स, ये जो सही रैंक है, जो ट्रुप्स के साथ मिली हुई है और मिलकर काम करती हैं, और जिसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी है जवानों के साथ, वो उनके जो वो रैंक लेकर बाहर आते हैं और आर्म फोर्सेस अपने सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं, तो इनकी जो देख रेख नहीं हो रही है, उसकी वजह से ये आज पिछले लगातार से 10 साल से हम काम कर रहे हैं, इस पर शुरू लोगों को बता रहे हैं। और आज में इस बात की खुशी है कि आज हम लोग यहाँ पर इस प्रेस क्लब चंडीगढ़ के अंदर इकट्ठे हुए हैं और हर एक ने अपनी आवाज बुलंद बताया है। हम इसको फॉर गॉड सेक डू नॉट कंसीडर एज ए प्रोटेस्ट, कंसीडर एज ए वेकअप कॉल। ये देश के लिए अभी इस समय वेकअप कॉल है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि ये कमजोरी कहाँ दिखाई दे रही है। अगर हमारा आज की तारीख में आर्म फोर्सेस यंग ऑफिसर्स की वजह, यंग मिलिट्री रैंक की वजह से ढीला पड़ा हुआ है और मोराल उसका हाई नहीं है, या ठीक है सर, मोराल उसका हाई नहीं है, तो इसका इफेक्ट युग के ऊपर का, इसका इफेक्ट यंग जनरेशन के ऊपर होगा। सो दे विल नॉट टेक एस, वो अपनी वो एक तमन्ना ली अपनी डेवलप करेंगे, वो अपने आप को आइडिया नहीं डेवलप करेंगे कि हमें भी इस लिए जाना है, कोई जबकि हालात ऐसे हो गए हैं। कोई एक फिगर आप दे सकते हैं या कोई अंदाजा दे सकते हैं कितने यंग ऑफिसर्स कम हुए हैं पिछले 5 सालों? देखिए, हम ये स्टैटिस्टिक्स नहीं दे सकते, कोई आइडिया कितने परसेंट है? बट इतना जरूर है कि एंट्री इनटू आर्म फोर्सेस जो हमारी एकेडमीज हैं, खास करके ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, जिसको हम कहते तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, लेकिन हम नहीं मानते कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है। हमारा सेमिनार और हमारे ऑफिसर ये कहते हैं ये प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर्स है। जब ये सब प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर्स हैं, यूपीएससी किया हुआ है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से सिलेक्ट मेडिकली फिट है, कॉम्पिटिटिवली सिलेक्टेड है, और बचपन से सैनिक स्कूलों के अंदर, अपने मिलिट्री स्कूल्स के अंदर हम जाकर लगातार इसकी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और सेलेक्ट होने के जोश के अंदर आते हैं। लेकिन जब हम वापस आते हैं, उस समय जब रिटायर होके या रिलीज होके जब बाहर आते हैं, तो जो हमारी जो 140 करोड़ जो संगत हमारी पॉपुलेशन है, उसके अंदर हम है कितने? 0.1% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन।
and this strength is feeling little demotivated. ठीक, ये मोदी सरकार ने जो बरजैक पेंशन का जो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हमने लागू कर दिया, उसमें क्या कमियां हैं? देखिए, आप इसको फॉर गॉड सेक डू नॉट से मोदी सरकार, मैं ये कहूँगा ये इस पूरे नेशन की सलाह में, चाहे जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 33 के अंदर ये जरूरी है कि आम मौसम हमें याद करें कॉन्स्टिट्यूशन सरकार कोई भी है। लेकिन ये जरूर देखा है कि 1973 से जब पेंशन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा, इसी की वजह से ये है कि जितना जवान हमारा जो फौजी है और इसमें सिपाही से लेकर जनरल तक वो जतर उत्तर पे क्यों पहुंच गए, क्योंकि देवर ह्यूज डिस्पैरिटीज। नेशन नहीं देख रहा, जो इस नेशन के लिए जो सरदार बना रहे हैं, सरकार बना के मोदी जी कैसे मोदी जी तो कि हमारी पीपल ऑफ द नेशन ने बना है। व्हाई डू वी से मोदी जी? नेशन हैज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम व्हिच वी आर फेसिंग टुडे। ठीक है, विद सब इधर पे स्मॉल इनके वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम दैट यू सर प्लीज इनका सवाल नहीं किया और 3 मिनट में आपने सारा कुछ बोल दिया, तो ये पूरी जो आपने रिसर्च बोला उसको 2 मिनट 2.5 मिनट में तब तक। देखिए, हमारा जो ये मकसद है बेसिकली और वन मिलिट्री रैंक वन प्रिविलेज केस का एक पर आवाज मिलता है। मिलिट्री रैंक जो कि प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर्स की रैंक है, उसके अंदर इतनी गिरावट आ चुकी है कि ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे मिलिट्री रैंक ऑफिसर्स हैं जिनको पहले तो वन रैंक वन पेंशन बिल्कुल नहीं मिली। दूसरी है जो इन्होंने जो एवीएस कमेटी बैठी थी, एवीएस कमेटी ने रिफॉर्म लाने की कोशिश की मिलिट्री के अंदर, लेकिन उन्होंने जो पुराने जितने हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जो सिलेक्शन ग्रेड थे, जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, जिन्होंने ट्रुप्स के साथ कमांड किया है, उनको वन रैंक वन पेंशन की टेबल के अंदर डिग्रेड कर, एक कर्नल साहब को, एक लेफ्टिनेंट कर्नल को जो सिलेक्शन ग्रेड था, जो उस समय का लेफ्टिनेंट कर्नल था 2004 से पहले, वो रिफॉर्म के बाद वो कर्नल बन गया। लेकिन जब वन रैंक वन पेंशन की बात आई तो वो जो पुराना जो जब हम कहते हैं वन पेंशन वन वर्क वन पेंशन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वहां पर आकर उसको उसमें गिरावट आई और वन रैंक वन पेंशन को लोअर डिग्रेड कर दिया। नाउ दैट हैज रिजल्टेड इनटू लॉट ऑफ डिमोटिवेशन अमंग्स द वेटरन्स। इसी प्रकार से जो हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनके पास प्रेसिडेंट की मिलिट्री रैंक है। वुमेन शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनके पास प्रेसिडेंट कमीशन मिलिट्री रैंक है, बट कोई वन रैंक वन पेंशन नहीं है। तो जब हम बड़ा इसका जो आवाज उठती है कि वन रैंक वन पेंशन सरकारें दे रही हैं, ऑन ग्राउंड के अंदर ये वन रैंक वन पेंशन नहीं आ रही है और आने वाले टाइम पे अग्निवीर के साथ साथ उनकी भी ये वन रैंक वन पेंशन बंद हो जानी है, क्योंकि वो अग्निवीर तो वो रैंक भी नहीं है। सो आने वाले समय के अंदर देयर विल बी अ मल्टीपल प्रॉब्लम, एंड इसी की वजह से एक फौजी इंडिया मैगजीन मुंबई में निकली है। अब खुद देख लीजिए, उन्होंने कहा था डायलेमा ऑफ सोल्जरिंग इन इंडिया, और इस डायलेमा ऑफ सोल्जरिंग इन इंडिया के अंदर जिस प्रकार से एक ये ग्राफिक बना है, ये मैं कुछ बयान करने के बजाय ये उसी का एक ग्राफिक देखा जाए तो उसी से पता लग जाए कि व्हाट इज दिस सेमिनार। और ये जो हर चीज है इसके अंदर आर्टिकल कवर स्टोरी है, और इसको भी जरा हाईलाइट किया जाए, द डायलेमा ऑफ सोल्जरिंग इन इंडिया। और वो एडिटर खुद कह रहा है इट्स अ वेकअप कॉल नॉट फॉर सरकार, वेकअप कॉल फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, बिकॉज सरकारें तो पीपल लोग ही बनाते हैं। रात प्रधानमंत्री को लिख किया आपने, तो बिल्कुल क्या क्या पता है, क्या लिखा? बेसिकली 3 चीजें मोड पॉइंट पता। एक तो ये जो हमारे पुराने जो टाइगर्स थे, हम उसको टाइगर और लायंस, हमारे फौजी जो हमारे लेफ्टिनेंट जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे तो 2004 से पहले थे, उनकी जो पेंशन्स उन्होंने कम कर दी और इनके आरओपी मेजर के बराबर कर दी, या जो क्योंकि ये तो सिलेक्शन ग्रेड होती थी पहले 2004 से पहले, तो उनको लोअर ग्रेड में डाला होना, ये गलत। दूसरी बात है, एक मिलिट्री रैंक
आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको एक हमने बकायदा इज्जत दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लेकिन उनको डिग्रेड करना जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना। दूसरी बात है, हमने ये यूनिवर्सल ओआरओबी के लिए बात की है कि जितने भी हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, एमरजेंसी वाले हैं, उनको भी ऊपरो रहा ओआरओ के लिए चाहिए, जितने भी मिले एशलेबल एक के बाद उनकी पैदा हुई। तीसरा, क्योंकि देश के सामने हमेशा क्या समस्या आ जाती है कि पैसा कहाँ गया। हर एक कोई कहता है कि वेयर द फाइनेंसेस कम फ्रॉम। अभी हमने कहा अगर आपके पास इतनी कमी है तो आप इसके आर्म फोर्सेस को ही 3 टियर सिस्टम में कर दी, 10 साल में एग्जिट, 20 साल में एग्जिट, 30 साल में एग्जिट। लेकिन जितने साल पहले से इंसान को पता होगा कि मैंने 10 साल के लिए रहना है, 20 साल के लिए रहना है, लेकिन उसको जो रिटायरमेंट के बाद पेंशनेबल एज के बाद उसको अगर ये 1 रैंक उसकी मिलिट्री रैंक की इज्जत बरकरार पेंशन के साथ कनेक्ट कर देंगे तो लोगों में मोटिवेशन आएगी, मोर पीपल विल कम इनटू आर्म्ड फोर्सेस, और देश सेवा इज द बेस्ट सेवा। एक ये पॉइंट हमने निकाला है कि एक बताया है कि आर्म फोर्सेस की पे कमीशन ही सेपरेट होनी चाहिए। जिस हमारी सिरदर्दी कहां पर शुरू हो गई है, 1973 से लेकर आज तक ये जो फाइनेंशियल कमीशंस बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, उनको हमारी जो समस्या है वो नहीं ठीक से समझ पाते हैं। और आर्म फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर जनरल्स हैं, उनको जो ग्राउंड रियलिटी है उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपने सिविल सिस्टम स्पीकर में। हम चाहते हैं बेहतर ये होगा कि ये जो जिस पर अगर रेलवे का बजट अलग से बन सकता है, जनरल बजट अलग बन सकता है, इसी प्रकार से एक स्पेशलिस्ट डिफेंस बजट की भी एक सिस्टम दायरा अलग हो जाना चाहिए। उससे काफी कामयाबी मिलेगी हम लोगों को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीसेटलमेंट्स के जो प्रोग्राम है, हाँ एक ज्यादा जरूरी है, एक हमने बताया है कि एक्स सर्विसमैन एक्ट, जो बंदा रिटायर होके आता है वो सिविल सोसाइटी में एक ही जर्सी से घुल मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जितने साल वो आर्म फोर्सेस में काम करता है, इसकी अपनी मेमोरी और उसकी मसल मेमोरी ऐसे डेवलप हो जाती है कि वो रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही काम करता, और जब वो बाहर आता वहां पर आके उसको तंगी महसूस होती है, लोग उसको नहीं समझ पाते और फौजी सिविल सोसाइटी को नहीं समझ पाता। इसलिए बेहतर है कि कोई ऐसे प्रोटोकॉल के कानून बनने चाहिए जैसे ब्रिटिश ने भी बनाए थे 1911 के अंदर। उन्होंने एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एक्ट 1911 का बना था। तो ऐसा कोई हमें कानून दे दें जिससे कि पूरा दायरा, पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो है इसको थोड़ा सा हेल्प आउट करे। एक्स सर्विस सिपाही से लेकर ये आपने बताया कि बंदन पंचायत में डाउनग्रेड कर, तो क्या रैंक भी बदल दिया है? ना रैंक ग्रेड 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 बदल दी सर। देखो हमारी जैसे मैं लेफ्टिनेंट अगर, लेकिन जो मैंने काम किया मैं कमांडिंग ऑफिसर्स में जो लेफ्टिनेंट का काम, अभी उसकी जगह उन्होंने कर्नल बना दी है। तो जो कर्नल की जो पेंशन है वो तो कर्नल को मिल रही है, लेकिन वही जो कमांडिंग ऑफिसर हम रह चुके हैं पहले, उनको पिछली ग्रेड का मिल रहा है। तो जो इक्वल के फॉर इक्वल पेंशन वाली हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की काज करते हैं, काम हमारा हमारी जैसे काम है सच जो डिग्रेड हो गए। हम क्या कर्नल, हम कलेक्शन ग्रेड में बेस्ट है, हमारी पेंशन कम है। फुल कर्नल जो आवाज से फुल कर्नल बच्चे हैं कि नहीं कर्नल नहीं डिग्रेड कर रही वो डिग्रेड का है, डिग्रेड कर तो रैंक वही है। आना काम वही है, काम हुई है। काम वही है। ये जो काम व्यक्ति तभी करता है। जो देखो 13 साल में मेजर बनते, अभी 13 साल में लेफ्ट करते। पहले क्या होता है 6 साल में मेजर बन सकता है कि हम 6 साल में कैप्टन बन, 13 साल में लीडर और 21 साल में हम लेफ्टिनेंट का, ये था सिस्टम। अभी क्या कर दिया उन्होंने, 2 साल में कैप्टन बना दिया, 6 साल में मेजर बना दिया, 13 साल में लेफ्टिनेंट बनाते हैं। तो हम जो 20-21 साल के बाद लेफ्टिनेंट रिटायर पीछे रहे, उनको कहते कि वो पीछे वाली रह के
inspection.